بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن ٹو بزنس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپنی میٹنگز ہے۔ تو آج کمپنی میٹنگز کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپنی میٹنگ کیا ہوتی ہے، میٹنگ کیا ہوتی ہے، اور کمپنی میٹنگ کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ میٹنگ کیا ہوتی ہے۔ واٹ از اے میٹنگ؟ A gathering of two or more persons by previous notice or by mutual arrangement for the discussion and transaction of some business is called meeting۔ یعنی جب دو یا دو سے زیادہ افراد باہمی رضامندی سے، میوچل ارینجمنٹ سے یا کسی پریویس نوٹس کے ذریعے آپس میں کسی بزنس ٹرانزیکشن کے لیے ڈسکشن کرتے ہیں یا کسی ٹرانزیکشن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے گیدرنگ کو میٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو اینی گیدرنگ آف ٹو اور مور پرسن فار اے اسپیسیفک پرپز whether it is mutually arranged or by a previous notice, it is called a meeting۔ Now company meetings یا company meeting سے کیا مطلب ہے؟ When the member of a company gather at a certain time and place to discuss the business and managing affairs, it is called meeting of the company۔ جب ممبر آف دا کمپنی کسی خاص جگہ پہ کسی خاص وقت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بزنس اور مینیجنگ افیئر آف دا کمپنی ڈسکس کرتے ہیں، تو ایسے گیدرنگ آف دا ممبرز کو کمپنی میٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کمپنی میٹنگز میں کمپنی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی خاص جگہ پہ یا کسی خاص ٹائم پہ، اور اس گیدرنگ میں وہ کمپنی بزنس اور اس کی مینجمنٹ افیئر جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب کمپنی ممبر اس پرپز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس نے اس گیدرنگ میں کمپنی بزنس افیئر اور مینجمنٹ افیئر ڈسکس کرنے ہیں، تو ایسے گیدرنگ آف دا کمپنی ممبرس کو کمپنی میٹنگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ کمپنی میٹنگ کی دو مین براڈ قسمیں ہیں، ایک ہے شیئر ہولڈر میٹنگ اور دوسرا ہے ڈائریکٹر میٹنگز۔ شیئر ہولڈر میٹنگز میں ہمارے پاس تین قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک ہے اسٹیٹوٹری میٹنگ، دوسرا ہے اینول جنرل میٹنگ اور تیسری ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ۔ یعنی شیئر ہولڈر میٹنگز میں ہمارے پاس یہ تین قسم کی میٹنگز ہوگی، اور ڈائریکٹر میٹنگز یہ مطلب اس کی کچھ اقسام نہیں ہے۔ اب اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیٹوٹری میٹنگ کیا ہوتی ہے، اینول جنرل میٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کیا ہوتی ہے۔ شیئر ہولڈر میٹنگز the meetings which are called to discuss the affairs of the company with shareholder are called shareholder meeting۔ یعنی وہ میٹنگ جو اس پرپز کے لیے کال کی جاتی ہے جس میں شیئر ہولڈر کے ساتھ کمپنی افیئرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ایسے میٹنگ کو شیئر ہولڈر میٹنگ کہا جاتا ہے۔ These meetings have following three kinds، اور اس میٹنگز کی تین اقسام ہیں، جس طرح میں نے اوپر سلائیڈ میں کہا کہ یہ تین قسم کی ہے، اسٹیٹوٹری میٹنگ، اینول جنرل میٹنگ اور ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ۔ تو پہلا جو قسم ہے اسٹیٹوٹری میٹنگ، اس کو آئینی میٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 157
This meeting is held once in the life of a public company. Section 157 of the company's ordinance کے مطابق یہ میٹنگ جو ہے کمپنی کی لائف میں ایک مرتبہ منعقد کرنی ہوگی. It is the first meeting of the company of the members of a public limited company. یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کا کے ممبر کا پہلا میٹنگ ہوتا ہے. Its main objective is to provide the shareholder with first-hand information about the exact position of the company's affairs. اور اس میٹنگ کا مقصد شیئر ہولڈر کو کمپنی کی ایگزیکٹ پوزیشن کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے. اب یہ میٹنگ پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پر اس قسم کا میٹنگ منعقد کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹنگ صرف پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے انڈر دا سیکشن 157 ریکوائرڈ ہے کہ کمپنی جو ہے اپنی لائف میں ایک مرتبہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ہیلڈ کرے گی. اب یہ میٹنگ کس نے بلانی ہے اور کہاں پہ ہیلڈ ہونی ہے؟ Section 77 of the company's ordinance 1984 make its compulsory for every public limited company by shares. جو پبلک لمیٹڈ کمپنی بائی شیئر مطلب کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز کے لیے ضروری ہے. ایوری پبلک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کے لیے ضروری ہے. اینڈ ایوری پرائیویٹ کمپنی کنورٹڈ انٹو پبلک کمپنی، اور جو پرائیویٹ کمپنی کنورٹ ہونا چاہتی ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی کو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے اسٹیٹوٹری میٹنگ کو ہیلڈ کرنا ہوگا. یعنی یہ میٹنگ ہر پبلک لمیٹڈ کمپنی جو لمیٹڈ کمپنی بائی شیئر ہے، لمیٹڈ کمپنی بائی گارنٹی ہے، اور ہر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو پبلک بننا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اسٹیٹوٹری میٹنگ کو ہیلڈ کرنی ہوگی، کال کرنی ہوگی. The statutory meeting must be held within a period of not less than 3 months and not more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence business. اب اسٹیٹوٹری میٹنگ کب ہیلڈ کرنی ہوگی؟ تو اسٹیٹوٹری میٹنگ کو ہیلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسی ہی کمپنی کو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ مل جاتی ہے تو اس پیریڈ سے لے کے 3 منتھ کے مطلب اس پیریڈ سے ناٹ لیس دین 3 منتھ اور 6 منتھ سے مطلب 3 مہینے سے کم وقت میں اور 6 مہینے سے زیادہ کے وقت میں اس کو ہیلڈ کرنا ہوگا. یعنی مسٹ ہیلڈ ود ان اے پیریڈ آف ناٹ لیس دین 3 منتھس، یعنی 3 مہینے سے کم مدت میں اور 6 منتھ سے زیادہ، ناٹ مور دین 6 منتھس. یعنی 120 یعنی جب کمپنی کو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس مل جاتی ہے تو 120 دن کے بعد مطلب 120 دن کے اندر 120 دن کے بعد اور 6 منتھ کے اندر 6 منتھ کے مطلب ناٹ مور دین 6 منتھ اس نے یہ میٹنگ ہیلڈ کرنی ہے. تو لہذا کس کو ہیلڈ کرنا ہے اور کب ہیلڈ کرنی ہے یہ یہاں پہ ہم نے سمجھ لیا. اب اس میٹنگ کی آبجیکٹو کیا ہوگی، کس مقصد کے لیے یہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے؟ ٹو پرووائڈ ایگزیکٹ اینڈ لیٹسٹ انفارمیشن اباؤٹ دا افیئرز آف دا کمپنی، تاکہ شیئر ہولڈر کو کمپنی کی لیٹسٹ انفارمیشن اور صحیح انفارمیشن پرووائڈ ہو. ٹو ون دا کانفیڈنس آف دا شیئر ہولڈر آف دا کمپنی، اور شیئر ہولڈر کا اعتماد جیتنے کے لیے، کیونکہ وہ ابتدائی میٹنگ ہوتی ہے کمپنی فارمیشن کے بعد، تو لہٰذا اس میں ہم شیئر ہولڈر کو یہ کانفیڈنس دلاتے ہیں کہ کمپنی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اینڈ ٹو ڈسکس دا اسٹیٹوٹری رپورٹ، اور اس میں میٹنگ میں اسٹیٹوٹری رپورٹ جو کمپنی کا اسٹیٹوٹری رپورٹ ہوتا ہے، آئینی رپورٹ ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اب یہ میٹنگ کس طرح نوٹس ہوگی؟ ایٹ لیسٹ 21 days before the meeting
A notice must be sent to each shareholder along with the statutory report by the secretary. कम अज कम 21 दिन पहले इस मीटिंग से तमाम शेयर होल्डर को सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी ने बाकायदा तौर पर एक नोटिस भेजनी है हर शेयर होल्डर को, और उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी भी भेजनी है। तो लिहाजा जब ये मीटिंग मुनक्किद करनी होगी तो उससे 21 दिन पहले तमाम शेयर होल्डर को बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की तरफ से इस मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाएगा, और उस नोटिस के साथ साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी शाया की जाएगी, ताकि शेयर होल्डर को उस बार ये पता हो कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या डिस्कस हो रहा है, और उसको 21 दिन पहले उस मीटिंग की इत्तला हो। हाउ द मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग को किस तरह हेल्ड किया जाता है। अंडर सेक्शन 157(2) of the company's ordinance, the director should send a notice of statutory meeting to all the shareholder at least 21 days before the meeting. Section 157(2) of the company ordinance ये प्रोवाइड करता है कि डायरेक्टर जो है उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग की नोटिस तमाम शेयर होल्डर को मीटिंग से 21 दिन पहले भेजनी होगी। डायरेक्टर आल्सो सेंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ड्यूली सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, वन ऑफ देम शुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर जो है उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी सेंड करते हैं जो कि ड्यूली सर्टिफाइड होती है बाय द 3 डायरेक्टर्स, और उन 3 में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी होगा। यानी जो नोटिस शेयर होल्डर ने डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को भेजनी है तो वो 21 दिन पहले मीटिंग से होगी, और साथ साथ उस नोटिस के साथ साथ बाकायदा तौर पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 3 डायरेक्टर ने साइन करनी है, और उसमें इन तीनों में एक जो होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। ये थी हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है कि सालाना जो जनरल मीटिंग की जाती है उसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, every company must hold an annual general meeting of its shareholders once in year. सेक्शन 157 ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर कंपनी जो है वो अपनी शेयर होल्डर की सालाना एक जनरल मीटिंग साल में एक दफा मुनक्किद करनी होगी। यानी इस सेक्शन के तहत हर कंपनी पे ये लाजिम है कि वो साल में एक मरतबा अपनी शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होल्ड करे। द मीटिंग प्रोवाइड्स an opportunity to evaluate and measure the efficiency of the director and other officer in carrying out the company's affairs. ये मीटिंग शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है कि वो डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर जो कंपनीज अफेयर को चलाते हैं, जो कैरी करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इवेल्युएट करते हैं और मेजर करते हैं कि आया डायरेक्टर कंपनी अफेयर को अच्छी तरह चला रहे हैं या नहीं। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए ये शेयर होल्डर के पास बाकायदा तौर पर एक अच्छा मौका होता है। अब इस मीटिंग को किस तरह नोटिस किया जाता है, तो अ नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी सेंड टू द शेयर होल्डर एट लीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। जिस तरह स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए जरूरी था, इस तरह एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जरूरी है कि इस मीटिंग के लिए शेयर होल्डर को बाकायदा तौर पर 21 दिन पहले मीटिंग से नोटिस देनी होगी। प्लेस ऑफ द मीटिंग कौन सी होगी, यानी मीटिंग कहां पे हेल्ड होगी। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड इन टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि उसका एनुअल जनरल मीटिंग उस सिटी में हो जहां पे उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस हो।
इस मीटिंग में शेयर होल्डर का रोल क्या होगा? द शेयर होल्डर कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर एंड कैन अपर सजेशन फॉर देयर इंप्रूवमेंट। इस मीटिंग में शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदर ऑफिसर की पॉलिसीज को इवेल्युएट करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और साथ साथ उसकी इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस भी देते हैं। इस मीटिंग की ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? ये किस लिए मुनक्किद किया जाता है? The main objective of this meeting is to check that ordinary business is being done according to the rules laid down in the article of association of the company। इस मीटिंग का मेन मकसद कंपनी का जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उसको देखा जाता है कि आया ये कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन के मुताबिक चल रही है। The director submit their report about the affairs of the company during the preceding year। डायरेक्टर जो है कंपनी अफेयर्स के बारे में पिछले साल के बारे में एक रिपोर्ट देते हैं। दिस रिपोर्ट इज नोन एज डायरेक्टर रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को डायरेक्टर रिपोर्ट कहा जाता है। अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मीटिंग आर इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर। इसमें डायरेक्टर की इलेक्शन भी की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो जाती है, फिक्सेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स एंड मैनेजिंग एजेंट्स रेम्यूनरेशन। यानी इस मीटिंग में डायरेक्टर्स ऑडिटर और मैनेजिंग एजेंट्स उनकी रेम्यूनरेशन की फिक्सेशन हो जाती है, उनकी जो मतलब मुआवजा दिया जाता है उसकी फिक्सेशन की जाती है। ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड बैलेंस शीट आर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। इस मीटिंग में ऑडिटर रिपोर्ट जो कि पिछले साल के मुताबिक के बारे में होती है और साथ साथ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो लिहाजा ये इसके अदर ऑब्जेक्ट्स है। इसके अलावा अगर कंपनी ये मीटिंग हेल्ड करने में नाकाम रह जाती है, मतलब अगर कंपनी 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकी तो इस तरह कंपनी जो है बायकॉट ऑन अप हो सकती है, उसकी वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है। तो लिहाजा ये मीटिंग न करना, इसका जो रीजन है उसका जो नतीजा होगा, जो रिजल्ट होगा वो वाइंडिंग अप की शक्ल में होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305B, a company may be owned up by the court if it does not hold the 2 consecutive annual general meeting। अगर कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305B अगर कंपनी 2 मुसलसल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग कर न सकी तो कोर्ट के जरिए उसकी वाइंडिंग अप की जा सकती है। तो लिहाजा ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स कंपनी न कर सकी तो लिहाजा कोर्ट के जरिए उस कंपनी का ओल्ड अप जो है या वाइंडिंग अप जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है कंपनी मीटिंग्स या शेयर होल्डर मीटिंग, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या गैर मामूली जनरल मीटिंग। एक एनुअल मीटिंग होती है सालाना जो हर कंपनी ने मुनक्किद करना है, जो लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने ये मीटिंग मुनक्किद करना है। लेकिन इसके बाद अगर कंपनी को किसी मीटिंग की जरूरत हो, किसी इशू पर दोबारा से मीटिंग की जरूरत हो, तो ऐसी मीटिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहते हैं, यानी गैर मामूली जनरल मीटिंग्स। ऑल द जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी वो तमाम मीटिंग्स जो एनुअल जनरल मीटिंग्स और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा हो, बाकी तमाम मीटिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स कहते हैं। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इट। इस मीटिंग के लिए किसी तरह का कोई टाइम लिमिट नहीं है। इट मे बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम के साथ, वक्त के साथ इस तरह की मीटिंग जो है वो की जा सकती है। अब किसके पास राइट है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर सके? तो पहला राइट है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर डूइंग सम अर्जेंट बिजनेस। डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर सके ताकि वो कोई अर्जेंट इशू है, कोई अर्जेंट बिजनेस है, उसको डील कर ले। दिस मीटिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड, दूसरी है कि दिस मीटिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। और ये मीटिंग डायरेक्टर कॉल सकते हैं अगर इस मीटिंग के लिए शेयर होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट हो, हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो शेयर होल्डर जब कॉल करते हैं तो उसके लिए 1/10 यानी 1:10 से 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर उसके लिए होनी चाहिए। यानी अगर 100 शेयर होल्डर हो तो उनका 1/10 शेयर होल्डर अगर चाहे तो ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट देनी होगी और डायरेक्टर उस रिक्वेस्ट को के जरिए मीटिंग कॉल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कॉल कर सकती है। In case the directors fail to call the extra general meeting within 21 days, और अगर किसी वजह से डायरेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग 21 दिन के अंदर कॉल न कर सके, then the shareholder themselves may call the meeting। फिर शेयर होल्डर के पास ये राइट आ जाता है कि वो ये मीटिंग खुद कॉल कर ले। In case meeting must be held, in such case meeting must be held within 3 months। और फिर उस सूरत में मीटिंग जो होगा 3 मंथ के अंदर जो है वो हेल्ड करनी होगी। नोटिस ऑफ द मीटिंग टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग 21 डेज नोटिस इज सर्व। इस मीटिंग को कॉल करने के लिए 21 दिन का नोटिस जो है बिफोर द मीटिंग सर्व की जाती है, भेजा जाता है शेयर होल्डर को। इस मीटिंग की प्रोसीजर कैसी होती है? The shareholder have to submit their demand to the secretary of the company। shareholder secretary of the company को अपनी डिमांड जो है वो सबमिट करते हैं with the consultation of directors। डायरेक्टर के मशवरे के साथ he will arrange to call the meeting, और फिर वो मीटिंग को कॉल कर सकता है। इस मीटिंग को कॉल करने के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? टू इशू द डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के लिए हो सकता है। टू अल्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कुछ तब्दीली करनी हो। टू अल्टर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अगर शेयर कैपिटल को अल्टर करना हो, उसमें चेंजेस करनी हो। तो लिहाजा ये 3 टाइप्स हमारी थी शेयर होल्डर मीटिंग्स की। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो डायरेक्टर मीटिंग्स के बारे में है। यानी हमारी ब्रॉड 2 मीटिंग्स थी कंपनी मीटिंग्स में। एक थी शेयर होल्डर मीटिंग्स, उसमें 3 किस्म थी। एक थी स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी थी एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। अब बात करते हैं डायरेक्टर मीटिंग्स के बारे में। द मेंबर ऑफ द कंपनी इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं वो कंपनी मैनेजमेंट के लिए अपनी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स, उनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। एंड दे आर डिफरेंट इन नंबर्स इन डिफरेंट कंपनी, और ये मुख्तलिफ कंपनियों में तादाद के हवाले से मुख्तलिफ होते हैं। ऑल द बिजनेस अफेयर आर सेटल्ड विद म्यूचुअल कंसल्टेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। और तमाम बिजनेस अफेयर्स डायरेक्टर्स जो है वो बाहमी कंसल्टेशन से सेटल करते हैं। सो द मीटिंग्स कॉल फॉर डायरेक्टर्स टू डिस्कस द पॉलिसीज और टू टेक द डिसीजन इज कॉल्ड डायरेक्टर मीटिंग। तो लिहाजा वो मीटिंग जो कॉल की जाती है डायरेक्टर्स के लिए ताकि उसमें वो पॉलिसीज को डिस्कस करे और डिसीजंस ले सके, तो इस तरह का मीटिंग जो डायरेक्टर्स कॉल करती है तो ऐसी मीटिंग्स को डायरेक्टर्स मीटिंग कहते हैं। तो इसका खुलासा ये है कि वो मीटिंग्स जो डायरेक्टर्स के लिए कॉल की जाती है ताकि उसमें वो पॉलिसीज डिस्कस भी कर ले और साथ साथ मुख्तलिफ डिसीजंस ले सके, तो ऐसी मीटिंग्स को डायरेक्टर मीटिंग्स कहते हैं। व्हेन इट इज हेल्ड, कब ये हेल्ड हो सकता है? दिस मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 3 months एंड एटलीस्ट 4 times in year। ये मीटिंग जो है हेल्ड होना है, मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 3 months, यानी 3 months के अंदर ये मीटिंग लाजमी होनी है 1 मरतबा, और साल में कम से कम 4 मरतबा होनी है। तो इसका मतलब
शेयर होल्डर में डायरेक्टर्स मीटिंग जो है ये हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में एक मरतबा और साल में कम से कम 4 मरतबा ये मीटिंग जो है इसको मुनक्किद किया जाना चाहिए. Notice of the meeting, notice of every meeting must be sent to each director. हर डायरेक्टर को इस मीटिंग का नोटिस भेजना चाहिए. Otherwise the proceeding of the meeting may be declared void. और अगर किसी ने डायरेक्टर को इस मीटिंग का नोटिस नहीं दिया तो फिर इस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग होगी यानी इसमें जो अमल होगा वो वाइड तस्वुर होगा, गैर कानूनी तस्वुर होगा. इस मीटिंग को कॉल करने की ऑब्जेक्ट क्या होती है यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग्स क्या होती है. तो ऑब्जेक्टिव ये है टू अलॉट शेयर अलॉटमेंट करनी होती है, टू इन्वेस्ट कंपनी फंड्स के बारे में मीटिंग होती है, टू रिकमेंड डिविडेंड रिकमेंडेशन होती है, टू कीप रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व यानी प्रॉफिट से कुछ रकम रिजर्व रखने के लिए मीटिंग होती है, टू मेक लोन किस तरह दिया जाता है, लोन के बारे में डिस्कशन होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और कमिटी इसके बारे में डिस्कशन होती है, टू डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, टू डिटरमिन द डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग के लिए डेट भी मुतय्यन की जाती है. तो लिहाजा ये थी हमारी कंपनी मीटिंग्स. बाकी डिटेल के लिए आप बुक को आप जो है वो देख सकते हैं. और एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.